Good morning, students. This is Allied School Nushaira campus. Today we are going to start a new chapter, unit number 3, and its name is The Plant's World. It's mentioned on your page number 22. Here, if you look at the right hand side of this page, you will find a plant, a structure of a plant. Your first lesson is about parts of a plant. So let's see what the different parts of a plant have. The main part which usually provides support to the plant, that is called a stem. Except providing support, the stem has another function, that is to give or to transport water to the leaves and to other parts of the body. Not only water but minerals as well, because they have some important tissues, right? Now look here, there are leaves. So we can say that the other part of plant is leaves. We can say that leaves are the kitchen of the plant. Why? Because in the leaf, the food for plant is prepared. For the whole plant is prepared. How? That is because of its green color. This green color has a pigment or a color that is known as a chemical that is known as chlorophyll. What the chlorophyll do? Chlorophyll captures light from the sun, and because of the presence of that light and obviously absorption of the carbon dioxide will produce glucose, and then this glucose is the food and it is then transported to all parts of the plant, right? So leaves are used to prepare food, stem is used for giving support and for transport of water and minerals, whereas there is another part which is flower. So the flowers are used for different purposes. Purpose number 1 is for attraction. Wherever you find flowers, you feel attractive, that oh, they are beautiful flowers, right? Except attraction, what is there? If you look over here, there is a yellow portion. The yellow portion has basically nectar. Nectar is a sweet smelling chemical, sweet tasting chemical. This sweet taste or this sweet chemical is taken by plants, by insects. Then these insects eat it, so and make we can say they make honey from them, like bees, right? And except that, they also take some spores from them, and then by taking the spores, they are taken to other parts of the plant or to other areas of the land where the same plant then grows. So we can say that the flowers are responsible for reproduction as well. Other thing, that in the flowers there are reproductive organs. So these reproductive organs are responsible for producing new plants and new seeds or new eggs, right? Okay. The other part which is very important for a plant, that is roots. So roots are grown inside the land. If you look here, the brown color, that is root. So as it's not having the green color, this means that there is the absence of chlorophyll and it will not prepare the food. Then what's the function of the roots? The function of roots is to absorb water and minerals from the soil, and then these water and minerals are taken to the whole plant for to the leaves for making food, and then that food is distributed to the whole plant through stem, right? So let's just read and see if there is anything new, and I'll also explain it in Urdu. Okay. Parts of plant, there are 4 main parts of a plant: root, stem, leaf and flower. आप देखें इधर तो हमारे पास 4 main parts हैं: roots, stem, leaves and flowers. The roots absorb water and minerals from the ground. They also help to anchor the plant in the stem. यहाँ पे आपको रूट्स का फंक्शन बताया गया है. रूट का फंक्शन नंबर 1 क्या है कि वो वाटर और मिनरल्स को ग्राउंड से लेकर जाते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है. वेयर एज सेकेंड फंक्शन इसका क्या है, दैट इज दे ऑल्सो हेल्प टू एंकर द प्लांट इन द ग्राउंड. एंकर द प्लांट मीन्स कि प्लांट को
डिग कर आता है, प्लांट को फिक्स रखता है। फिक्स कहाँ पे रखता है? ग्राउंड में। अगर रूट्स ना होती तो प्लांट तो ग्राउंड में फिक्स ना रह पाता। तो ये रूट्स क्या करती हैं? ये प्लांट को स्टैंड फर्मली इसी तरह रूट्स के अंदर ग्राउंड के अंदर खड़ा रहने में मदद करता है। ठीक है, ओके। द स्टेम हैज सेवरल फंक्शंस। नेक्स्ट है स्टेम। ये स्टेम दरमियान वाले मेन पोर्शन है, इसके कई फंक्शंस हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर अप द प्लांट। नंबर 1, वाटर को प्लांट से मतलब रूट्स जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो स्टेम उसको वहाँ से अप साइड पे ट्रांसपोर्ट कराता है, ऊपर लेके जाते हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द लीव्स एंड फ्लावर्स पर्टिकुलरली अगेंस्ट द विंड। अब जब हवाएं वगैरह आती हैं तो हवा के साथ तो लीव्स तो काफ़ी हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, फ्लावर्स काफ़ी लाइट होते हैं, तो वो फ्लाई कर जाएंगे। लेकिन एज यू नो दैट यही लीव्स, यही फ्लावर्स स्टेम के साथ काफ़ी अच्छी तरह से ग्लूड हैं, अटैच्ड हैं, इस वजह से ये इनको सपोर्ट करते हैं और लीव्स इनको उड़ा नहीं पाते। Some stems have spikes or hair that protects the plant from insects and small animals. आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स हमारे पास कुछ स्टेम्स क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल इट्स अ स्टेम, तो इनके ऊपर इस तरह छोटे छोटे हेयर होते हैं, जिस तरह रोज़ की प्लांट को आप चेक कर लें, है ना। तो उन हेयर को या फिर आप लेडी फिंगर को चेक कर लें, भिंडी को, सो दे आर मेनी टाइनी हेयर। तो अगर आप उसको टच करते हैं तो वो आपको इरिटेशन सा फील कराते हैं, तो आप कहते हैं कि ये तो मैं टच नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, वो वॉश करने में भी इजी नहीं होता है, तो ये इसको कहते हैं हेयर। अच्छा, इसके अलावा इनमें स्पाइक्स भी होते हैं जिनको हम कहते हैं कांटे, इस तरह शार्प से कांटे होते हैं, रोज़ प्लांट्स में अक्सर होते हैं, फाइंड किए जाते हैं। ये कांटे क्या करते हैं, ये स्पाइक्स क्या करते हैं, ये जब इंसेक्ट्स या एनिमल्स इनको खाने की कोशिश करते हैं तो उनको लग जाते हैं, उनको इंजर कर देते हैं। इन दिस वे एनिमल्स या इंसेक्ट्स या हम भी इनको डैमेज नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कहते हैं कि कुछ प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कैक्टस को आप देख लें, इनके स्टेम वाटर भी स्टोर करते हैं। कैसे? कैक्टस को आपने देखा तो कैक्टस के स्टेम यूँ होते हैं, स्टेम लीव्स उनके नहीं होते हैं और स्टेम उनके यूँ होते हैं, है ना, और यहाँ पे फिर बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं। सो इतना मोटा ये क्यों होता है? व्हाई इज इट दिस मच फैट? दैट इज़ बिकॉज इट स्टोर्स वाटर। तो कैक्टस कहाँ पे ग्रो करता है? डेजर्ट में ग्रो करता है। तो डेजर्ट में ग्रो करने की वजह से उनको वाटर की तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन डेजर्ट में इतना वाटर नहीं होता है, तो ये वाटर स्टोर करते हैं। तो वाटर ज़्यादा रिक्वायर्ड ना भी हो तो वाटर इनके पास होता है, जब जब इनको चाहिए होगा ये वाटर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लीव्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। दे आर द प्लेस वेयर फूड इज़ प्रोड्यूस्ड। द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपरेशन। सो लाइट के मदद से फूड को प्रिपेयर करते हैं। आपको मैंने अभी बताया कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फूड बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। लीव्स कंटेन अ ग्रीन कलर, ग्रीन सब्सटेंस, उसको कहते हैं क्लोरोफिल, विच इज़ वाई लीव्स आर ग्रीन मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि क्लोरोफिल तो ग्रीन होता है। द क्लोरोफिल कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम द सन एंड व्हेन दिस इज कंबाइंड विद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फूड इज प्रोड्यूस। देखिए, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स को में क्लोरोफिल होता है और नीचे से इनके पास, रूट्स से इनके पास आ जाता है वाटर, है ना। बाहर से इनके पास दो चीज़ें आती हैं, एक सन से हीट है या लाइट है, और दूसरी चीज़ इनके पास आती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और एज अ रिज़ल्ट ये सारी चीज़ें मिक्स होकर आपके पास क्या बनाती हैं, फूड, और इस फूड को हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है, ओके। द क्लोरोफिल कन्वर्ट्स एनर्जी, सो इट इज़ डन। फ्लावर्स प्रोड्यूस सीड्स, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं विच फॉर्म न्यू प्लांट्स। हाउएवर नॉट ऑल प्लांट्स हैव फ्लावर्स, सारे प्लांट्स के पास तो फ्लावर्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी फ्लावर्स हैव सेवरल इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन देम विच यू विल लर्न अबाउट लेटर। लेकिन अभी मैं आपको बता चुकी हूँ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या करते हैं, वो इनके